So let us start the today's class. Okay. So today's topic. Today we are going to start a new chapter, which is cycloconverter. Okay. So this is a new chapter which we are going to start today. That is cycloconverter. So what is the role of cycloconverter? What is its function? So converter converts. It's a converter which converts your fixed. Okay, let me write. It converts AC input voltage to AC output voltage by changing its frequency. That means it is a AC to AC converter. Otherwise, you can call this device as AC converter, AC slash AC converter. By changing its frequency. Here, actually, input is also AC, output is also AC. Okay, input is AC voltage, output is also AC voltage. So, what is the difference? The frequency of input AC voltage will be changed. Okay, so that is why it is known as cycloconverter. So, where does the name come from? Cyclo मतलब cycle, cycle से आया वो word. ठीक है. अच्छा ये हो गया, यहाँ तक लिखना है AC input voltage to AC output voltage by changing its आउटपुट फ्रीक्वेंसी. इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, आउटपुट फ्रीक्वेंसी मतलब जो आउटपुट हम लोग को मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी इनपुट के कंपैरिजन में. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं रब कर रही हूँ. ये लिखना हो गया ना सबका? सो ये नाम कहाँ से आया? साइक्लो कन्वर्टर. साइक्लो कन्वर्टर, दिस नेम अराइजेस फ्रॉम द वर्ड साइकिल. Okay, so what is frequency? All of us know what is frequency. Frequency is number of cycles completed per second. Number of cycles completed per second, isn't it? So like we used to say 50 hertz. 50 hertz, this means AC voltage will complete 50 numbers of cycle in 1 second. Okay, so here we will be changing the frequency. And frequency में ये जो term आ रहा है ना, number of cycles, ये जो cycle word आया ना, यहाँ से ये इस device का नाम पड़ा cyclo converter. Okay, which can be able to convert the frequency value of the input voltage to some other value. Say for instance the input I'm just giving you an example. If the input voltage has got frequency say 50 hertz, so we'll also get on the output side AC voltage, no doubt, but here the frequency will be more than 50 hertz or it can be less than 50 hertz. ठीक है, तो AC to AC कन्वर्टर, बट AC आउटपुट वोल्टेज जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा. So I think it is now clear to you what is the function of cycloconverter. It is otherwise known as AC to AC converter. AC slash AC means AC to AC converter. ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, सो पहला टॉपिक शुरू करते, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. इसको रब कर रही हूँ. AC AC कन्वर्टर लिख लेना. Okay, the first topic is first we have to understand how does a cycloconverter operates. If you understand this thing, this particular topic, you'll be able to understand the rest of the topic. ये जो है ये एकदम बेसिक है इसका कि कैसे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन.
ठीक है. Okay, note down the topic, then I'll be rubbing it out. Principle of operation, right? So in order to make you understand this principle of operation of cycloconverter, we must draw a basic circuit diagram. Okay, so draw a circuit diagram. Okay, draw this diagram simultaneously. Draw the diagram. In between we have connected a load. ठीक है, बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, दैट इज लोड. लोड कैन बी एनीथिंग. यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक आर लोड लगाया. सो यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर कि एसी सप्लाई वोल्टेज वी आर गिविंग फ्रॉम both side, two ends we are giving, from this end and from this end we are giving the AC supply voltage, isn't it? हम लोग दो साइड से AC supply voltage दे रहे हैं. Okay, see the arrows, this black arrows. So we are giving the AC supply voltage from two ends to two numbers of group. ये दो number of group क्या है? Now there are two groups. One is called as the positive group. एक को कहते हैं positive group and दूसरे को कहते हैं negative group. Positive group, negative group दोनों जो है वो commonly एक load के साथ connected है. You can see over here both the groups are connected to a common load. Load can be anything. Here just for instance I have taken R load. Okay, so positive and negative group are being connected to a common node, and both the positive and negative groups will be fed with the help of a common AC supply. Okay, so now what is the role of this positive group and negative group? Okay, let us understand. So for this I need a space. ठीक है, ये diagram हो गया I think सबका. Okay, positive. First let us discuss what is positive group. This positive group and negative group are nothing but set of thyristors. ठीक है, set of thyristors switching devices. अभी जस्ट प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जब डायग्राम आएगा तब और अच्छे से क्लियर होगा. सो नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज पॉजिटिव ग्रुप. व्हाट इज द रोल ऑफ पॉजिटिव ग्रुप? Okay, so positive group, as the name suggests, if positive group as well as negative group are nothing but group of thyristors, right? So whenever positive group will be coming into picture in the circuit, it will convert the positive cycle of the AC supply input voltage. It will convert positive. Say for example, this is the thing which is coming into picture. Okay, for this case, if the positive half, this I'm showing input voltage, AC input voltage. Okay, and in the second half I'm just showing ki what is the result of a positive group. What will positive group will do? So positive group, if the positive half will be there, it will convert into positive. Okay, and if it is coming across a negative half, it will also convert into positive half. Are you getting my point? This is input, supply, and this is output. First one is input, AC supply voltage, and second one is output we are showing. Okay, so if it is coming across positive group, it will also convert into positive as I am showing over here. And if it is coming across a negative group, it will convert into a positive group also. So what is the meaning positive group? Positive group is a group of switching devices
which will convert the positive groups to positive, as well as the negative groups, positive halves or positive cycles to positive halves, and negative halves to positive. That means the final gist of the thing is the positive group will convert whatever halves of input AC supply will be coming into the picture. It will convert all to positive halves. It will convert whatever AC supply voltage you are giving, and whatever be the halves, it will always convert all those halves to positive halves only. ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव ग्रुप में, इसीलिए इसका नाम है पॉजिटिव ग्रुप। दिस इज द रीजन इट इज नोन एज पॉजिटिव ग्रुप। क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? हमेशा इसका आउटपुट, जो पॉजिटिव ग्रुप का जो आउटपुट आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेगेटिव ग्रुप के बारे में। ये हो गया सबका लिखना, ये चीज लिख लेना, ये हमेशा इसका आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव हाफ्स में ही कन्वर्ट होगा, इसको नोट कर लेना। ठीक है, हो गया। वेव फॉर्म बनाना हो गया, रब करूं। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट नेगेटिव ग्रुप। तो जैसे हम लोग पॉजिटिव ग्रुप के बारे में डिस्कस किए थे, वैसे ही नेगेटिव ग्रुप में क्या करेगा अभिषेक? सिमिलरली, हाँ, जो भी हाव्स आएगा उसके रास्ते में, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो भी वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट नेगेटिव ग्रुप्स। So negative groups are also a group of thyristors or switching devices, you can say, which will convert whatever be the halves of positive input AC supply voltage. It will all convert into negative groups, negative halves only. It will convert all the in halves of the input AC supply voltage into negative halves. Okay, so that we can discuss with the help of waveform. Suppose this one is for supply voltage. This is the supply voltage, positive half and negative half. So what will this do? It will convert positive to, this is output voltage. Okay, it will convert positive to negative and negative to negative. So you can see negative is converted to negative and positive is converted to negative. So it will convert all the halves to negative halves only. Output हमेशा negative halves पे convert होगा, right? Is it clear? Okay, draw कर लेना। अच्छा, एक्स एक्सिस जो है ना, सब में टाइम है, मैंने लिखा नहीं है, लिख सकते हो, ये टाइम है। पहले वाले में भी लिख लेना टाइम, टी इज फॉर टाइम। ओके, वेव फॉर्म बना लो जल्दी से। बन गया? ओके, अभिषेक ओवर। दिव्या, दिव्या हो गया? ओके, ओके, सो अगर ये चीज समझ गए तो हो जाएगा, एकदम फटाफट हो जाएगा। सो नाउ वर्किंग प्रिंसिपल, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो से वी विल बी डिस्कसिंग बाय टेकिंग वन एग्जांपल, कि अगर मेरा इनपुट have three axes like this. ठीक है, take all x-axis as time. First one is supply voltage, second one is also output voltage, and third one is also output voltage for some different case. Okay, uh, for second one, okay, okay, first one, let us have, let us draw a supply voltage like this. Okay, this is supply voltage. Now second case we are drawing for alpha is equal to 0 degree. So write down here, second output V naught we are drawing for alpha is equal to 0 degree case. We are assuming firing is occurring at alpha is equal to 0 degree. Now what will be the effect? Okay. Now give an extension 0 crossing.
like this. Now if alpha is equal to 0, alpha is equal to 0. Up to this it is clear. Now alpha is equal to 0 degree. So suppose we are controlling the positive half in such a way कि for the first two halves we are allowing the positive group to work. मतलब समझ रहे हो, पहला दो हाफ जो है ये और ये, पहला दो हाफ जो है वो पॉजिटिव ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट टू हाफ जो है वो नेगेटिव ग्रुप काम कर रहा है। इस तरह से हम लोग साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। सो पहला दो अगर पॉजिटिव से होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा आउटपुट, जस्ट नाउ वी हैव अंडरस्टूड ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में आया एंड नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ठीक है, क्लियर ना। ये हम लोग को कंट्रोल करना है, जैसा हम लोग को चाहिए वैसा ही कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि पहला टू हाफ्स जो है वो मैं पॉजिटिव ग्रुप से ही काम करवा रही हूँ, सो दैट इज वाई वी आर गेटिंग पॉजिटिव हाफ्स जो अभी ग्रीन लाइंस में दिख रहा है, ठीक है। फिर सॉरी, हाँ, फिर नेगेटिव हाफ्स जो है नेगेटिव ग्रुप को दो बार ऑपरेट कर रहे हैं। सो नेगेटिव हाफ जब ऑपरेट करेंगे तो देखो ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, अंडरस्टूड, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वैसे साइकिल चलेगा, फिर से पॉजिटिव दो बार, फिर उसके बाद वैसे ही, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव, फिर दो बार पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ग्रुप जो है, यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हाउस, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, 1 2 पॉजिटिव हो रहा है, 3 4 नेगेटिव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव ग्रुप, एंड 5 6 जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ अगेन पॉजिटिव ग्रुप्स, ठीक है। ओके, नाउ यू मे आस्क, यहाँ पे मैंने अल्फा इज इक्वल टू 0 रखा है तो इसलिए 0 पे फायरिंग हो रहा है, डायोड के जैसे काम कर रहा है। हाँ, यू मे आस्क कि अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे तो कैसा दिखेगा। हाँ, ठीक है, तो मैं अल्फा को थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं अल्फा, ओके, अल्फा को मैं ले रही हूँ थर्ड, थर्ड केस, ओके। Alpha I'm taking, I'm assuming alpha is equal to 30 degree. So you just assume third case output voltage for the same input, for the same input Vs, but we are taking in this case we are taking alpha is equal to 30 degree. So अगर 30 degree लेंगे तो 0 degree से फायर नहीं होगा, ऐसा आएगा फायरिंग, ठीक है। यहाँ पे भी मैं फर्स्ट टू हाफ जो है पॉजिटिव हाफ से कन्वर्ट मैंने ऑपरेट कर रही हूँ, ओके। देन अगेन टू हाफ्स रेजिस्टिव लोड, ओके, इसलिए शेप ऐसा आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टू हाफ्स, first two halves are being converted with the help of positive group, third and fourth halves with the help of negative group, फिफ्थ एंड सिक्स्थ अगेन विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव ग्रुप। तो ऐसा आएगा, तो बस शेप चेंज हो गया। वाई, बिकॉज हियर वी हैव चूजन अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज वाई 30 डिग्री ये है, यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है, और ये 0 डिग्री पे फायर हुआ था, ये 30 डिग्री पे फायर हो रहा है, अंडरस्टूड। यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो है यू मैं आज की हमेशा दो दो करके ऑपरेट होगा ऐसा नहीं है, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग को फ्रीक्वेंसी कितना ज़्यादा या कितना कम करना है, इट डिपेंड्स अपॉन आवर नीड, आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर फर्स्ट केस, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर सप्लाई, मैं टी एस लिख रही हूँ सिंबल ना, टी एस मीन्स टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई वोल्टेज। So 1 और 2 मिला के टाइम पीरियड हो रहा है, isn't it? Now for the second case, alpha is equal to 0. टाइम पीरियड कहाँ आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसके लिए सिंबल डाल रही हूँ टी नॉट। टी नॉट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ, टी नॉट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज, and similarly for the third case it will be same, 1 2 3 4 तक, ठीक है, इट विल बी सेम टी नॉट। तो यहाँ पे टाइम पीरियड अगर वी नॉट का देखेंगे सेकेंड एंड थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, टी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू टी एस, तो टी नॉट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। तो टी नॉट अगर इंक्रीज कर रहा है, टी नॉट टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/t। सो अगर टाइम पीरियड डबल हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है इसीलिए। ठीक है, तो ये मैं रब करती हूँ, यहाँ पे समझ में आया ना? ऑपरेशन ऐसे ही ऑपरेशन होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा दो दो करके ऑपरेट करेंगे, डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, किस हिसाब से हमको फ्रीक्वेंसी कमाना है या फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। ओके, ठीक है, मैं रब कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसा आ रहा था, विच विच वी वांट टू सी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो लेट अस सी। Okay, so in this case, if you compare T naught with Ts, तो हम लोग को क्या मिला था? T naught is equal to twice of Ts, isn't it? On comparison, T naught is equal to twice of Ts. Now T naught is equal to 1 by F naught, reciprocal of frequency, and Ts is equal to 1 by Fs. So we can say Fs is equal to twice of F naught. तो फ्रीक्वेंसी वेदर सॉरी एफ नॉट को लिखना चाहिए था। एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस बाई 2। So F naught is coming. Finally, F naught is equal to time period is twice, so F naught is half. F naught is equal to Fs by 2. That means frequency has decreased. तो देख रहे हो मेरा जो फ्रीक्वेंसी था Fs, जो भी था फ्रीक्वेंसी Fs, उसका हाफ हो गया आउटपुट फ्रीक्वेंसी, isn't it? So this is what the role of AC to AC converter is. AC slash AC converter. It converts AC to AC, no doubt, but here the frequency will be changed. Frequency of what? Frequency of the output AC voltage. ठीक है, सो इस तरह से ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। नाउ विल बी लुकिंग फॉर अदर सर्किट्स। ठीक है, ये रब करूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? सबका कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हुआ ना? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गया। ठीक है, ओके, हम लोग पहले अभी पढ़ते हैं वन फेज टू वन फेज कन्वर्शन, उसके बाद थ्री फेज पे जाएंगे। थ्री फेज थोड़ा टफ है ड्रॉ करना, पता नहीं मैं यहाँ पे बना पाऊंगी या नहीं। ठीक है, पहले वन फेज वाला सर्किट करते हैं। वन फेज टू वन फेज स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। This is the topic, second topic, one phase to one phase step up cyclo converter. So that means input is one phase supply voltage and output is also one phase, so one phase to one phase, right? And step up क्यों कहते हैं? Any idea? हाँ, एफ नॉट जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी that will be greater than fs, that is why it is known as step up. Or one phase to one phase because input is one phase and output is also one phase, AC to AC, one phase input and one phase is also output. ठीक है, and f naught will be greater than fs, that is why step up cyclo converter. ठीक है, so now let us discuss about a circuit diagram. अच्छा, यहाँ पे मैंने टाइप नहीं लिखा, यहाँ पे ऐड करो इस जगह पे स्टेप अप मिड पॉइंट टाइप। टाइप नहीं लिखा है, सॉरी, ये लिख लेना मिड पॉइंट टाइप। मिड पॉइंट टाइप और जिसको सेंटर टैप्ड टाइप कहते हैं। ओके, सो टॉपिक का नाम है वन फेज टू वन फेज स्टेप अप
midpoint type cycloconverter. Midpoint type is also known as center tapped type. इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हो, center tapped type. ठीक है. Okay, now let us discuss about his circuit diagram. So as the name suggests, midpoint or center tap, that means obviously in the circuit diagram we will be having one, क्या अभिषेक क्या होगा डायग्राम में? मिड पॉइंट नाम आ रहा है. हाँ हाँ, लोड कनेक्ट होगा. बट हम लोग को क्या चाहिए? ट्रांसफार्मर चाहिए जो कि मिड पॉइंट टाइप होगा, सेंटर टैप टाइप का होगा. ठीक है, जैसा हम लोग लैब में करते थे, इफ यू रिमेम्बर. So draw the circuit diagram. We are connecting one transformer. This is the primary. Okay, this is one phase AC supply. अच्छा, what does this ये पैरेलल लाइन शोज? ये पैरेलल लाइन शोज क्या करता है, क्या शो करता है ट्रांसफार्मर में? नहीं, ये लाइंस क्या शो करता है दिव्या? ना, दिव्या, अनीशा, बताओ क्या है? ये कोर को शो करता है, कोर. दोनों वाइंडिंग्स के बीच में कोर होता है ना. सो दिस दीज टू पैरेलल लाइन शोज अबाउट द कोर. ठीक है, कोर को शो करता है. अगर सपोज किसी केस में ऐसे नहीं है, सपोज ये पैरेलल लाइंस नहीं है, व्हाट डज द सिग्निफाई? नहीं है, सिर्फ वाइंडिंग्स है, तो वो क्या सिग्निफाई करेगा? एयर कोड है. ठीक है, एयर कोड है. बट हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक कोर ले रहे हैं. ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ द डायग्राम. डायग्राम बनाओ साथ साथ. I'm just showing the points, huh? A point, O point, and B point. Output voltage. Now, naming of thyristors: P1, N1, P2, N2. ठीक है, डायग्राम कर लो फटाफट. ओके, डायग्राम ओवर. ओके, तो थोड़ा सा नोट कर लेना. P1 एंड P2 जो है, P1 कॉमा P2 जो है, ये क्या शो करता है? ये पॉजिटिव ग्रुप को शो करता है. जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में, पॉजिटिव ग्रुप होगा, एक नेगेटिव ग्रुप होगा. तो P1 एंड P2, P1 P2 N1 N2, चार थायरिस्टर्स है. ठीक है, जहाँ पे हम लोग P नाम आ रहा है वो पॉजिटिव ग्रुप शो कर रहा है. ठीक है, सो P1 एंड P2 आर फॉर्मिंग द पॉजिटिव ग्रुप फॉर द सर्किट, एंड N1 एंड N2. ठीक है,
N1 N2 क्या शो कर रहा है, N1 कॉमा N2 ये शो कर रहा है नेगेटिव ग्रुप, ये नोट कर लेना, negative group show कर रहा है. So P1 P2 are forming the positive group and N1 N2 are representing the negative group. And देखो दोनों ही common load से connected है, isn't it? एक common load यहाँ पे connected है दोनों के साथ, ठीक है. So same thing but यहाँ पे diagram के through से हम लोग देख रहे हैं. Okay. So यहाँ पे circuit explanation now here, as because it is known as center tapped or midpoint type, obviously we need for this purpose we need a transformer which has to be center tap type, ठीक है. And this center point is known as O, which I have shown as O point, huh? And the two other ends of the secondary winding are A and B. A and B के बीच में the set of thyristors are being connected. P1 and P2 forms a positive group. N1 and N2 forms the negative group. And both all these two groups are connected to a common load. Okay. So now let us discuss about the working. Working discuss करते हैं, ठीक है. So suppose input is AC ना, input is AC supply voltage. Okay, so when we are coming across पॉजिटिव हाफ ऑफ द सप्लाई, जब पॉजिटिव हाफ आ रहा है हमारा, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ सप्लाई का. जब व्हेन वी आर कमिंग अक्रॉस पॉजिटिव हाफ, पॉइंट ए विल बी मोर पॉजिटिव देन पॉइंट बी, इजंट इट? जब पॉजिटिव हाफ आएगा, सो पॉइंट ए विल बी मोर पॉजिटिव देन पॉइंट बी. तो कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बेस्ड होगा? विच टू थायरिस्टर विल बी फॉरवर्ड बेस्ड? हाँ, P1 एंड N2. अच्छा मेरा N2 रब हो गया. P1 एंड N2 राइट. P1 जो है वो इस एंड के लिए हो रहा है, ठीक है, और N2 जो है वो B पॉइंट के लिए हो रहा है. सो P1 एंड N2, सो यहाँ पे साइड में लिखते जाना, यहाँ पे ऐसे लिख लो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ना. P1 कॉमा N2, P1 कॉमा N2 आर फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे A पॉइंट विल बी मोर पॉजिटिव देन B पॉइंट. ओके, नाउ व्हेन वी आर कमिंग अक्रॉस नेगेटिव हाफ ऑफ द सप्लाई, तब क्या होगा? तब उल्टा हो जाएगा. ओके, सो पॉइंट ए विल बी, पॉइंट बी विल बी मोर पॉजिटिव देन पॉइंट ए. तब उल्टा हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचा वो फॉरवर्ड बेस्ड होगा. रिमेनिंग क्या क्या होगा? P2, रिमेनिंग क्या क्या होगा? हाँ, ऊपर वाले से N1, नीचे वाले से P2. सो वी कैन से P2 एंड N1 ड्यूरिंग दिस नेगेटिव हाफ, ठीक है. सो ऐसे करके एक डायग्राम करके वहाँ लिख लो साइड में सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो whenever positive half is coming into picture, P1 and 2 are forward biased, and whenever negative half is coming into picture, P2 and N1 are coming into are forward biased. ठीक है, क्लियर? इतना दूर क्लियर हुआ ना? ओके. सो अभी मैं वेव फॉर्म बना रही हूँ इसका, ये वर्किंग हो गया क्लियर, ठीक है. बट ये जो कंट्रोल है वो हम लोग को कैसे कंट्रोल करना है, ये हम लोग को डिपेंड करता है किस स्टेप से करना है. तो ये अभी हम लोग डिस्कस करें स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर. स्टेप अप मतलब यहाँ पे हमारा एफ नॉट शुड बी ग्रेटर देन एफ एस. एफ नॉट ग्रेटर देन एफ एस मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, AC वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी इनपुट वोल्टेज ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है. तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे दैट मीन्स टाइम पीरियड हैज टू बी डिक्रीज्ड. टाइम पीरियड को रिड्यूस करना पड़ेगा तब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा. रेसिप्रोकल है ना? ओके. तो अभी हम लोग कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, सो नेक्स्ट इज द वेव फॉर्म फॉर दिस सर्किट डायग्राम.
Okay, waveform. Draw the negative side also. Okay, so this positive side shows VAB and the negative side shows VBA, जो कि blue वाला line है. Okay, so black one is VAB when A is more positive than B, and blue one shows VBA. You can note it down, huh? And this x-axis is your time, and y-axis we are showing VS as well as, wait, we are showing VS as well as we are also showing V naught. VS and V naught both will be showing. तो अभी मैंने VS दिखाया, ठीक है. Now we will be discussing इसका V naught कैसा होगा. This is about VS. So black is your VAB, okay, and blue is your VBA. वहाँ साइड में लिख लेना. Okay. Now हमारा पॉजिटिव हाफ आ रहा है पहले, ठीक है. पॉजिटिव हाफ में हम लोग का क्या क्या थायरिस्टर फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था P1 और N2, isn't it? तो P1 पहले से P1 फायर हो रहा है, ठीक है. तो P1 फायर होगा तो डायग्राम एक बार देखो. P1 सिर्फ P1 फायर हो रहा है, सिर्फ P1. तो अपर वाला सर्किट इज वर्किंग लाइक दिस. P1 इज फायर्ड, लोड से कनेक्ट हो रहा है ऐसे, ठीक है. यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P1 था, isn't it? नीचे वाला सर्किट को हम ऑपरेट नहीं कर रहे, सिर्फ टॉप वाला सर्किट, isn't it? ए वाला पॉइंट और वापस ओ में जा रहा है. हाँ, नीचे वाले जो है, नीचे वाला तो हमारा N2 है, उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं. पहले P1 को ऑपरेट करेंगे, फिर N2 को ऑपरेट करेंगे. तो N2 वाला कैसा होगा सर्किट, ऐसा वाला होगा, ठीक है. ऐसा सर्किट होगा. तो एक बार P1, एक बार N2, एक बार P1 फिर N2, ऐसा ऑपरेट करेंगे पॉजिटिव हाफ में, ठीक है. अंडरस्टूड. 1/1 विल बी ऑपरेटिंग, एक साथ नहीं हो रहा है. तो पहले हम लोग P1 को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है. लाइक दिस. सो वेव फॉर्म जो है, ये पिंक वाला वेव फॉर्म आ रहा है फॉर आउटपुट वोल्टेज. पिंक वन इज शोइंग फॉर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है. यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ ताकि समझ पाओगे. ये P1 के लिए है, ये N2, this is for N2, then again P1, then N2, then P1, then N2. देखो, P1 पॉजिटिव हाफ है, पॉजिटिव ग्रुप है तो पॉजिटिव आया, विच यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है. और N2 क्या है, N2 क्या है, नेगेटिव ग्रुप है ना, तो पॉजिटिव हाफ को नेगेटिव पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है. सो दैट इज वाई पिंक वाला जो लाइन है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, isn't it? उसके बाद P1, फिर से P1 N2 P1 N2 ऐसे करके हम ऑपरेट कर रहे हैं. तो फिर P1 फिर पॉजिटिव रहेगा, फिर N2, फिर वो नेगेटिव में आ जा रहा है, फिर P1 फिर N2. ओके, ठीक है, समझ में आया. फिर हम नेगेटिव हाफ के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ. नेगेटिव हाफ के लिए, तो नेगेटिव हाफ में कौन सा थायरिस्टर्स आर, कौन सा ये फॉरवर्ड बेस्ड हो रहा था. हाँ, नेगेटिव में था P2 और N1. बाकी जो बचा P2 और N1. तो पहले N के बाद हम पहले P को करेंगे, ठीक है. P मतलब P2. सो लाइक दिस विल बी गेटिंग, ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. सो दिस इज फॉर P2 पॉजिटिव ग्रुप, then N1, then P2, then N1, then P2, then N1, ठीक है. इस तरह से आउटपुट आ रहा है.
ड्रॉ कर लो फिर एक्सप्लेन करूँगी। कोई डिफरेंट कलर का पेन यूज करना सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, हाँ, नहीं तो एक ही कलर में ना समझना मुश्किल होगा। डायग्राम हो जाएगा तो बोल देना। हो गया। अभिषेक, अभिषेक हो गया। दिव्या, दिव्या है या चली गई? हो गया, अच्छा। है, अच्छा, हमको लगा कि नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। तो अभी हम लोग टाइम पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं, हाँ। तो इनपुट का टाइम पीरियड क्या था? इनपुट वोल्टेज का, इनपुट वोल्टेज तो यहाँ से लेके एक साइकिल यहाँ से लेके यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना 2 पाई में, ठीक है। सो दिस इज टी एस, सप्लाई वोल्टेज का टाइम पीरियड। टी एस मीन्स टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई वोल्टेज, वी एस इज सप्लाई वोल्टेज, टी एस इज टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब टाइम इसका इसका आउटपुट का टाइम पीरियड का क्या होगा? इसको मैं येलो लाइन से दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। इसका क्या होगा? ये होगा टी आउट, मीन्स टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा टाइम पीरियड टी, टी नॉट, टी टी जीरो या टी नॉट बोल सकते हो। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, वी नॉट का टाइम पीरियड, वी नॉट का टाइम पीरियड इज या टी नॉट, वी एस का टाइम पीरियड इज या टी एस, ठीक है। तो टी एस के कंपैरिजन में टी नॉट रिड्यूस हुआ या इंक्रीज हुआ? इफ यू कंपेयर, टी नॉट रिड्यूस हो गया तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, इजंट इट? फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। सो यू कैन नोट इट डाउन यहाँ पे, टी नॉट इज इक्वल टू, टी नॉट इज इक्वल टू 1/f0 एंड टी एस इज इक्वल टू 1/fs, ठीक है। अभी हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कितना टाइम्स बढ़ा कैलकुलेट करो तो अपने से, कितना टाइम, मतलब टी, टी एस और टी नॉट के बीच में रिलेशनशिप क्या है? टी एस इज इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ टी नॉट? जल्दी बताओ। ना 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 ना, मैं पूछ रही हूँ, देखो मेरा क्वेश्चन है टी एस इज इक्वल टू कितना टाइम्स ऑफ टी नॉट, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स, ये एक्स क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स? नहीं नहीं, मैं टाइम पीरियड के बारे में पूछ रही हूँ, टाइम पीरियड कितना टाइम्स है टी नॉट? ठीक से देख के बताओ। हाँ 6 टाइम्स, देखो यहाँ 6 टाइम्स हो रहा है, 1 2, देखो मैं मार्क कर रही हूँ, हाँ, 3 4 5 6, हाँ 6 टाइम्स हो रहा है ना, 6 टाइम्स ऑफ टी नॉट इज इक्वल टू टी एस, तो एक्स जो है वो मेरा 6 है, ठीक है। सो 6 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम रिलेशनशिप निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी सॉल्व करो तो एफ एफ आउट इज इक्वल टू कितना टाइम्स एफ एस हो रहा है? एफ नॉट इज इक्वल टू हाउ मच टाइम्स ऑफ एफ एफ एस? 6 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। 6 टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स हमारा फ्रीक्वेंसी जो है, दैट मीन्स इसको मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ, सो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है मेरा आउटपुट वोल्टेज का एफ नॉट, that has been increased, f naught has become more than fs, ठीक है, ठीक बोल रही हो ना, एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एस,
6 टाइम्स हो गया। यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया 6 टाइम्स का। यू कैन आल्सो इंक्रीज इट टू 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, बट हमेशा जो भी करना है इवन नंबर्स में करना है। ऐसा नहीं कि P1 एंड 2, P1 किया उसके बाद फिर P2 पे चले गए, ऐसे नहीं, इवन नंबर्स में होगा। मतलब पॉजिटिव हाफ में जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे पूरा 6 टाइम्स कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि 5 टाइम्स कर पाओगे। मतलब जैसे समझ रहे, एफ नॉट इज इक्वल टू मैंने इवन नंबर मल्टीप्लाइड विद एफ एस किया, वैसे हमेशा हमेशा जो होगा वो इवन नंबर्स में होगा, ऑड में कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एफ नॉट इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ एस, ये नहीं हो सकता, या एफ नॉट इज इक्वल टू 5 टाइम्स एफ एस, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना हमेशा एक के बाद वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये इवन नंबर्स का मल्टीपल ही होगा हमेशा, ऑड नंबर का मल्टीपल कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा एफ नॉट क्या आ रहा है, एफ नॉट इज मोर देन एफ एस, इसलिए इसको स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर भी कह रहे हैं। अंडरस्टूड, इसलिए इसका नाम है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, वन फेज टू वन फेज कन्वर्ट करे। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू दिस टॉपिक। हेलो, क्लियर हुआ? अच्छा, फिर इसके बाद और एक टॉपिक डिस्कस कर देती हूँ। टाइम एक बार कितना हुआ? 40। छोड़ू क्या, छोड़ू या बता दो? अभिषेक जल्दी बोलो। हेलो, छोड़ दो, अच्छा ठीक है, रेडी भी होना है ना उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, उसके बाद व्हीकल 3:30, इसके बाद वाला टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सी यू देन।